So we'll start from that particular point, right? Please turn on your camera. So who can share me that what we have done in the last session? Yes, please, Harsh. Sir, in last lecture we have did sequential decision and iterative statements and we have done if else, nested if else, then we have done for loop, then we have done while loop, and then we have seen some extra like a break, continue, and pass. Very good, very good, Harsh. Okay, so I think we have seen the conditional statements. Everything we have did in the conditional statement. So I think I told you that we are going to do some examples or some programs based on that, right? So that was my statement in the last session, right? Uh, so today we are going to see some examples related to that. Okay, so I will give you one task that you need to perform. So I will give you 15 minutes for that, and you have to make a program for something that I will give you, and you need to tell me how you have made that program and output of that program. So I will give you 15 minutes for that. Just I will display that what is the task. So wait a minute, just I will share that screen with you. संजय क्या भाई क्या फरज है तू શું પ્રોબ્લેમ છે ભાઈ ક્યાં ફરો છો તમે પછી તમે કેમ કેમેરો ચાલુ કરતા નથી સામેથી અવાજ બી નહીં આવતો તમારો બધા ગાના નહીં ચાલે ભાઈ માઇક બંધ થતું એટલે સંભળાતું નતું ના બધા નાનો છોકરો છે તું Okay. So I'm going to give you one statement to you. Just write down that statement. Just write down that statement. I will repeat that. So the statement is like that. Write a Python program. Write a Python program to count the numbers of odd and even numbers from a given comma separated series. From a given comma separated series. Common comma separated. Yes or no? Okay, so I will explain that first what we need to do. So just a minute, just I will share the screen. Wait, okay, let me share the screen with you. Tell me what is delay. Okay, so what you need to do, count the numbers of even and odd numbers from a series of comma separated numbers. Series of comma numbers. Okay, so the thing it should be clear from the statement. Okay, आप पहले मेरे को बताइए what do you understand by this statement? Sir, can I? Please. Okay. Harsh, are you there? Yes, sir. Okay, बोलिए आप. Sir, you will give us a list and we have to find how many even numbers and how many odd numbers are there, and we will list them. Okay. Okay.
anything, anybody else? Firstly, tell me what is relay. Anyone else जो इसका मतलब बताएगा? ये देखो, ये कोई आपको हर एक को बोलना है. I will ask you one by one, but you are free to tell me first. ठीक है, आप पहले बता सकते हो, बाकी सबको मैं पकड़ पकड़ के बुलाऊंगा कि इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का. तो बेटर कि आप अपने हिसाब से बोलिए. यस आबिद. सर कोई भी एक लिस्ट में है जिसमें नंबर का लिस्ट है, यस. वो लिस्ट में से इवन और ऑड नंबर जो कि कॉमा के बाद है, कॉमा के बाद है. कॉमा सेपरेटेड कॉमा में इवन और ऑड नंबर को गिन के उनका नंबर बताना है, काउंट नंबर बताना है. अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड. हु एल्स विल टेल मी नेक्स्ट? स्मित पटेल बोलो. 21 नंबर. स्मित, आर यू देयर और नॉट? यस, ओके, बताइए. સ્મિત, પહેલા તમે એક શાંત જગ્યા ઉપર જતા રહો, પછી બોલો. ઓકે, પહેલા શાંત જગ્યા જતા રહો, પછી બોલો. શાંત જગ્યા જતા રહો, શાंति બેસો, પછી बोलो. ओके, आई विल वेट फॉर ए मिनट. बाकी किसी को मैं टर्न देता हूँ, इसके बाद आपकी बारी आएगी. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज रोहन गुप्ता. यस सर. बोलिए सर इसमें हम लोग को एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप एक मतलब एक कोई कंटेंट देंगे, मतलब नंबर का कंटेंट या कोई भी, और उसमें से हमको ऑड या इवन नंबर को सेपरेट करके, इवन और ऑड को सेपरेट करके देना है हमको सर. Okay, so as per Rohan tells that it is given some numbers, series of numbers, and from that you need to separate the odd and even numbers. Okay. Tell me what is the function of Okay, Suthar Kishan, Suthar, बोलिए आप. यस सर. What do you understand by this statement? सर इससे मैंने ये समझा कि सर हमें एक लिस्ट दिया है, उसमें सर नंबर्स है, तो उसमें हम ऑड नंबर कितने और इवन नंबर कितने वो काउंट करना है. वेरी गुड. ओके, सो आपका कहना है कि एक सीरीज दिया जाएगा, उसमें ऑड कितने हैं और इवन कितने हैं उसको गिन के बताना है. ठीक है. ओके, गुप्ता रोहन. यस यस. सॉरी, रोहन गुप्ता हो गए. सुथार रुशील सुथार. यस सर. हाँ, बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? सर इसमें हमको जो नंबर दिए गए वो उसमें और इन और आउट कितना है वो बताना है, वो काउंट करके. नहीं समझा नहीं, फिर से बताइए. सर इसमें वो हमको नंबर दिए गए होंगे, उसमें से और ऐड और इन कितना है वो हमको गिन के बताना है. उसका मतलब क्या होता है? और ये आप जो बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हैं, मतलब आप मेरे को एग्जांपल दे सकते हो? कैन यू गिव मन एग्जांपल की ऐसा नंबर्स दिए होंगे, इसमें इतना ये चीज़ है, इतना ये चीज़. बताइए, अब एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल के साथ मेरे को समझाइए आप. एग्जांपल सर, ठीक है, आपको टेस्ट करना पड़ेगा प्रोग्राम को. प्रोग्राम टेस्ट करने के लिए यू नीड टू राइट समथिंग एंड यू विल गिव यू आंसर. तो आपको क्या चीज़ इनपुट में डालना है वो भी पता होना चाहिए, और क्या आंसर आएगा वो भी पता होना चाहिए, तब आप टेस्ट कर सकते हो ना. क्योंकि आपको पता नहीं इनपुट क्या डालना है, आउटपुट क्या आएगा, तो किसके साथ आप चेक करोगे? आपको पता ही नहीं है. सो फर्स्ट टेल मी द एग्जाम्पल. आप एग्जाम्पल बताइए जिसके अंदर ये प्रोग्राम अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये इनपुट डालूंगा तो ऐसा आउटपुट आएगा. बताइए, खाली इनपुट क्या होना चाहिए आपका और आउटपुट में क्या आएगा वो मेरे को बताइए.
Yes, sir. ઇન્ટરનેટ નો ઇશ્યુ છે કે અવાજ નથી આવતો સંભળાતું નથી કે એમ કે લાઈક ટેકનિકલ ઇશ્યુ છે. So this is called your understanding of the statement. Okay, अगर if you are not able to understand the statement, then आपको आगे कितना भी आएगा ना, this is nothing to Yes, work sir. with that. समझ लो इस चीज को, मतलब आपको जी, पहले स्टेटमेंट क्लियरली पढ़ना आना चाहिए. That I have told many times in my lectures कि अगर आपको स्टेटमेंट जो प्रोग्राम बनाने का स्टेटमेंट आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते तो वो आपका प्रोग्राम बनाया कुछ काम का नहीं. बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया आपने बट इट इज नॉट रिलेटेड विद दैट स्टेटमेंट, देन आपका प्रोग्राम पूरा गलत हो जाएगा. Are you getting my Yes, point? sir. So first try to understand this statement clearly कि क्या का मतलब है. ठीक है, तो मैं आपको फिर से पूछ रहा हूँ. ठीक है, आपको मैं 2-3 बच्चों को पूछने के बाद फिर से आपको मैं पूछूंगा. यू जस्ट आपको सोच के रखना है कि क्या एग्जाम्पल आएगा. ठीक है. Yes, sir. ओके, नाउ स्मित पटेल. એ સાચો જવાબ આપે મને ખબર છે કોન્ફિડન્સ થી કોઈ જવાબ જ નથી આપી શકતું. यस सर, आवाज आ रही है मेरी? यस, आप जब भी क्लास करें जस्ट बी ऑन द साइलेंट प्लेस पे बैठना है पहले. ठीक है. सर मैं अकेला ही था, पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही थी. आपके आसपास हवा चल रही होगी तो भी आवाज आएगी. यू टू बी इनसाइड द रूम. आप रूम के ओके अंदर बैठ के आपको क्लास. सर इसमें ना कॉमन लिस्ट માંથી इवन ऑड नंबर है ना अलग करवाना છે. ओके, हाँ सर. क्या लिस्ट માંથી? हाँ, कॉमन लिस्ट માંથી इवन અને ऑड નંબર અલગ કરવાના હોય છે સર. ને એક્ઝામ્પલ કહું તમને. कॉमन लिस्ट. હેલો. हाँ, कॉमन लिस्ट એટલે શું કહેવાય? એટલે સર કોમન લિસ્ટ हाँ, because I have not used the word any common list over here. મેં common list નામનો કોઈ શબ્દ વાપર્યો નથી આ સ્ટેટમેન્ટમાં. તમને જે સ્ટેટમેન્ટ દેખાતું જ હશે. That I have not used any. કોમા સર સોરી કોમા લિસ્ટ માંથી ઇવન અને ઓડ નંબર અલગ કરવાના છે. હા, એટલે common list કેવું હોય? સર હા, બોલો. જેમ કે સર ને એક એમાં ને એક થી અને 9 માં ઇવન અને ઓડ નંબર શોધવાના હોય છે સર. 1 2 3 4 એ રીતના. ઓકે, એટલે લખવાનું કેવી રીતે? લિસ્ટ તમે લખો કેવી રીતે આપશો? એમાં ઇનપુટ સર કેવી રીતે આપશો તમે? મેં સ્પેસિફાઈ કર્યું છે ત્યાં. સ્પેસિફાઈ સ્પેશિયલી મેં લખ્યું છે અહીંયા કે તમારું કોમા સેપરેટેડ લિસ્ટ. comma separately. So you need to understand that word perfectly. What is comma separated list? Okay, okay. Just you can turn off your mic. Okay. So I will come to you, Tejas. ठीक है, आपको मैं पूछता हूँ लेकिन once I have to clear some students before come to you. ठीक है. कंजारिया चिराग. Yes, sir. Okay. What do you understand by this statement? बताइए आप. સર આમાં એવું કહેવા માંગે છે કે પહેલા આપણે એક લિસ્ટ ક્રિએટ કરવાનું જેમાં 1 થી 1 2 3 4 5 6 7 8 9 એવું લિસ્ટ બનાવવાનું. સર એમાંથી આપણે ઇવન નંબર કેટલા છે અને ઓડ નંબર કેટલા છે એ આપણે ગોતવાના. જેમ કે ઇવન નંબર એમાંથી 4 થશે સર. 1 3 5 અને 7 અને 9 એ ઇવન નંબર થયા અને ઓડ નંબર થયા અને ઇવન નંબર 2 4 6 અને 8 થશે સર. Okay, so what will be the output? So it is a number. Output is numbers. What you have told me 1 3 5 7 or the count of that number. ના સર કાઉન્ટ ઓફ ધી નંબર એટલે કે આપણને એ નંબર મળશે. એટલે ઇવન નંબર આપણને સર ઇવન નંબર યાની 4 મળશે અને ઓડ નંબર આપણને 5 મળશે સર આઉટપુટમાં. Okay, so if you enter the number like 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then you are getting 4 odd number 5 odd numbers and 4 even numbers, right? Okay. Okay, so my question to you again, Chirag, that what should be the input again? You are talking me the list. Okay, so list means which type of list?
એટલે લિસ્ટ ની અંદર તે સર આપણે એક બ્રેકેટ ની અંદર 1 to 9 સુધીના સર લિસ્ટ બનાવી નાખવાનું. કયું બ્રેકેટ? If you are talking about the bracket, it is a small bracket, curly bracket, then Small bracket. square bracket. Which bracket? સ્મોલ બ્રેકેટ સર. Small bracket. Okay. Okay. So next, Prerna. ओके एक क्वेश्चन से पूछने से पहले मैं एक चीज बता, मैंने आपको कॉल किया था आई थिंक 2-3 दिन पहले, तो इज व्हाट योर नंबर? मुझे यस, आई हैव कॉल्ड यू ऑन दिस नंबर, वेट ए मिनट, आई हैव दैट नंबर, आई हैव सम वर्क विथ यू, आपको एक काम बताना था बट यू नॉट पिक अप माय कॉल, so I will just tell you it is your number or not. 63 One second. Let me I think tell you. Just I have called on 8200670113. sir, that's my number only. So I have called you in that number on I think Friday. I don't know the date exactly. Okay, this is the date called 28th July. I have called you at evening time at 6 o'clock. Okay, so I didn't get any call, I think, but I will see once. ठीक है. ओके, तो बताइए अभी ये आपका जो स्टेटमेंट है क्या कहना चाहता है, बताइए. So we have to take a list of the numbers, and from that we have to tell the count that how many even numbers are there and how many odd numbers are there. Okay. How would you take the list? Which type of list you are taking, and आपका कैसा format है list? We can take like natural numbers like 1 to 10, and from that even numbers like 2, 6, 4, 8 and 10 are the even number between 1 to 10. So the count of the even number will be 4 and the odd number will be 5. Okay. I think Kunjan is left, right? Kunjan Prajapati. No sir. Yes sir. आपका टर्न आ गया क्या? बाकी हो ना आप? बाकी हूँ सर. हाँ तो बोलिए आप. यस सर, इसमें सर एक कॉमन लिस्ट दिया गया होगा सर, उसमें से हमको कितने इवन नंबर है और कितने ऑड नंबर है वो फाइंड करना है. जैसे 1 to 9 में सर 5 ऑड नंबर आते हैं और 4 इवन नंबर आते हैं, ऐसे सर. ओके, तो आपको एक ही क्वेश्चन है, आप आई थिंक ऑल सब लोग समझ गए उस स्टेटमेंट को, बस मेरे को एक चीज अभी तक क्लियर नहीं हुई, विच टाइप्स ऑफ लिस्ट यू आर टेकिंग. आपको क्वेश्चन यही है अभी, आपका लिस्ट कैसा होना चाहिए. लिस्ट मतलब नंबर्स आप कैसे इनपुट में दोगे. आई एम नॉट, दिस इज द रॉन्ग वर्ड आई एम यूजिंग, इज अ लिस्ट, बट बिकॉज इट इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद द लिस्ट ऑफ द पाइथन का जो लिस्ट है और मैं अभी जो लिस्ट बोलना चाहता हूँ वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे दोनों वर्ड. ठीक है, लिस्ट in the Python is a different thing, and I'm talking about the list. It is an English word that I'm using for the numbers of sequence of numbers. It is called list. Okay, so do not confuse with the list of Python and what I'm talking right now, list of the numbers. Okay, ये दोनों में confuse मत होइएगा. ठीक है, तो again I will change my statement. This how the sequence of numbers you are taking. ठीक है, आप कैसे numbers लो, कैसे किस तरीके से लिखोगे numbers, मतलब that you need to tell. सर हम लिस्ट लेके स्क्वायर ब्रैकेट लेके 1 2 3 ओके, तेजस आप बताइए अभी. सर यस સર એવો પ્રોગ્રામ લખવાનો છે કે જે સર n શ્રેણીના જે નંબરો આપેલા કે જે અલ્પવિરામ એટલે કે કોમાથી સેપરેટ કરેલા છે, તો એવામાંથી એકી અને બેકી સંખ્યાઓને અલગ પાડવાની છે. એટલે એકી સંખ્યા કેટલી અને બેકી સંખ્યા કેટલી છે. n શ્રેણીના બધા સંખ્યા અંકો આવશે. n શ્રેણીમાં એટલે કે 1 થી લઈને n સુધી 1 2 3 4 5 6 એવી રીતે n સુધી. તો એક્ઝામ્પલ કોઈ આપી શકીશ કે આ નંબર છે તો આમાં આ રીતનું ઇનપુટ હશે ને આ રીતનું આ આઉટપુટ હશે પ્રોગ્રામનું. વિથ એક્ઝામ્પલ, मतलब कोई भी एग्जाम्पल नंबर्स
લઈ અને in will tell me so this if we'll give this input and this will be the output. સર એમાં કંડિશન મૂકવાની, જેમ કે આપણે લિસ્ટ બનાવી ગમે તે લિસ્ટમાં સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં 1 2 3 4 5, તો પછી આપણે નીચે કંડિશન મૂકવાની છે કે ઇફ ધ ઇફ એટલે બે વડે ડિવાઈડ કરી જેનો આન્સર 0 આવે. હું પ્રોગ્રામનો તો પૂછતો જ નથી, પ્રોગ્રામ તો કેવો આવશે તો તમારે જ બનાવવાનો છે. હું અત્યારે શું ક્લિયર કરાવું છું તમારા જોડે કે પ્રોગ્રામમાં કેવું ઇનપુટ હશે, શું આઉટપુટ હશે, ધેટ્સ ઓલ. વોટ એવર ઇનસાઇડ પ્રોગ્રામની અંદર તમારે જે વાપરવું એ વાપરજો. આઈ એમ નોટ બોર્ડર અબાઉટ ઇનપુટની અંદર સર નંબર હશે આપણે જે મૂક્યા હશે, અને આઉટપુટમાં એક કાઉન્ટ થઈને આવશે કે કેટલા ઓડ છે ને કેટલા ઇવન છે. અગેન માય ક્વેશ્ચન ઇઝ નંબર તમે કેવી રીતે આપશો ઇનપુટમાં? આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? નંબર તમે ઇનપુટમાં કેવી રીતે આપશો? સર ઇન્ટીજર થ્રુ. We have method to take the input, is called input method, right? Just a second. સર ફ્લોટ નંબર નહીં આવે, ઇન્ટીજર નંબર જ આવે. Just a second, I have called this. Wait. ओके, तो मैं जो बात कर रहा था कैसे इनपुट दोगे? हाँ बताइए, अभी आप कौन बोल रहा था? आई थिंक तेजस, बताइए. सर इंटीजर में जिसका भी समावेश होता है वो नंबर सर देंगे, फ्लोट का तो सर नहीं आ पाएगा सर. हाँ ओके, दैट्स क्लियर. ओके, दैट्स गुड. उसके अंदर हम वी आर नॉट पुटिंग दी floating numbers, we are putting only integer numbers. okay, तो आपको खाली integer number ही उसके अंदर देना है. this is one thing is clear. लेकिन कैसे देना है, इनपुट में आप कैसे दोगे? इसके लिए मेरे को एक ने बताया कि कॉमा से सेपरेट करके देंगे, ठीक है ना. एक बोल रहा ब्रैकेट लगा के देंगे, स्मॉल ब्रैकेट, एक बोल रहा स्क्वायर ब्रैकेट लगा के देंगे. सो इनपुट कैसे देना है आपको, वो इफ इट इज नॉट क्लियर देन आप प्रोग्राम में प्रोसीड नहीं कर सकते. आपका सबका प्रोग्राम अलग बनेगा. दैट्स व्हाई मैं इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ इस पॉइंट को, अभी आप समझो. क्योंकि अगर आप अभी तक समझ नहीं पाए स्टेटमेंट को तो आपका हर एक का प्रोग्राम डिफरेंट होगा. किस पॉइंट ऑफ व्यू? सर मैं कुछ बोल सकता हूं? यस बोलो तेजस. सर उसको एक नाम देंगे और उसके बाद उसमें लिखेंगे, जैसे कि सर n, तो n इज इक्वल टू, और उसके बाद ब्रैकेट में सारे नंबर्स लिखेंगे. दिस इज कॉल्ड वी आर राइटिंग द नंबर्स इनटू द प्रोग्राम. वी आर राइटिंग नंबर्स इनटू द प्रोग्राम, सो वी आर नॉट एबल टू चेंज दिस नंबर आफ्टर मेकिंग द प्रोग्राम. राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? समझ में आया ना? एक बार प्रोग्राम बना दिया आपने, एप्लीकेशन बना दी आपने, प्रोग्राम बना दिया और किसी को आप दे रहे हो प्रोग्राम. समझ लो, मैंने पहले भी बताया आपको, आप एक डेवलपर हो, आपको एंड यूजर है उसका ध्यान रख के आपको प्रोग्राम बनाना है. मतलब आप अगर प्रोग्राम में ही आपने इनपुट डाल दिए, सो एवरी टाइम व्हाट इट इज काउंटिंग, आपने जो भी नंबर पहले से सेट करके दे दिया है वही नंबर को वो काउंट करके देगा. राइट? आउटपुट में. तो यू आर नॉट एबल टू चेंज द नंबर्स. आप नंबर चेंज नहीं कर सकते. तो आपको नंबर्स कैसे लेने पड़ेंगे, कहां से लेने पड़ेंगे, कौन सा कमांड यूज करके लेना पड़ेगा? इनपुट. वेरी गुड.
इनपुट करके आपको कमांड से आपको नंबर्स लेने हैं, तो इनपुट कमांड में आप मल्टीपल नंबर्स कैसे देंगे? दिस वाज माय क्वेश्चन। सर इसमें लिखा है ना सीरीज, मतलब श्रेणी आती है ना सर। हाँ, क्या क्या बोलिए, कैसे देंगे? क्योंकि हम अगर इनपुट में एक नंबर देते हैं तो वी कैन राइट वन नंबर एंड विल पुट एंटर, देन वो एक नंबर जो एक सपोज 2 नंबर मेरे को इनपुट में देना, तो मैं 2 नंबर इनपुट में दे सकता हूँ। बट इफ यू नीड टू गिव मल्टीपल नंबर्स एज इनपुट टू दी पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो आप मल्टीपल नंबर्स कैसे इनपुट में देंगे? या हर एक को बार बार कॉल करवाएंगे कि भाई एंटर ए फर्स्ट नंबर, एंटर ए सेकंड नंबर, एंटर ए थर्ड नंबर, एंटर ए फोर्थ नंबर? उधर भी सर एक लिस्ट बना देंगे। List, the word you are using the list, if it is a list of Python list or you are talking about list of जो अभी सीक्वेंस की बात कर रहे हो, वो लिस्ट की बात कर रहे हो? कौन से लिस्ट की बात कर रहे हो? सीक्वेंस की लिस्ट सर। कैसे बनाओगे सर? वो आउटपुट में जैसे हम करेंगे कि एंटर अ नंबर, बाद में हम सर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी लिस्ट बना देंगे, उसमें सर नंबर डाल के कर देंगे। नो, नॉट करेक्ट। आप स्क्वायर ब्रैकेट, अगर फिर से आप बता रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट, सो इट इज अ टर्म यू आर यूजिंग ऑफ पाइथन लिस्ट, बिकॉज स्क्वायर लिस्ट, the square list, if you are a square bracket you are putting, that the meaning of that square bracket means you are creating a list for a Python data type. Python के data type में आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, वो लिस्ट आप बाहर क्रिएट कर रहे हो जो आप प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो। प्रोग्राम के बाहर वो लिस्ट का कोई मतलब नहीं। समझ लो, आप समझ लो कि आपने एक कैलकुलेटर बनाया, कैलकुलेटर बनाने के टाइम आप ऐसा कुछ बनाया था कि मल्टीपल नंबर्स आप अंदर इनपुट में डाल सकते हो और मल्टीपल नंबर्स का आप एडिशन करवा सकते हो, ठीक है? तो जो प्रोग्राम के अंदर जो लिस्ट बनेगा, अंदर की बात करो, जो कैलकुलेटर के अंदर जो इसकी मेमोरी है उसके अंदर जो प्रोग्राम बनाया है वो आपको विजिबल नहीं है, वो तो अंदर बनाया है ना। तो वो जो प्रोग्राम अंदर बनाया हुआ है उसके अंदर किसी जो प्रोग्रामर ने लिस्ट बनाया होगा, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सेस दैट लिस्ट, क्योंकि वो तो अंदर है प्रोग्राम के। बट बाहर की साइड अगर हमारे पास बटन्स है, तो बटन से हम क्या करते हैं कि बटन 1, फिर +2, +3, +4, मतलब हम नंबर डालते हैं बाहर से। तो उसमें तो हम स्क्वायर ब्रैकेट तो करते नहीं, उस डालने के टाइम हम क्या करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट करो, फिर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट करो, फिर नंबर डालो। नो सर, नहीं करते। यस, दैट वाज माय अगेन मेरा क्वेश्चन, वहीं पे मैं आ रहा हूँ कि व्हाट वाज द इनपुट, कैसा इनपुट की सीक्वेंस कैसी होगी? अभी कोई समझा? सर पहले सर बोलो। यस सर, पहले प्रिंट करवाना पड़ेगा कि एंटर द लिस्ट ऑफ नंबर्स। यस, वेरी गुड। और उसके बाद सर उसको उसकी वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी सर। हाँ, कैसे स्टोर करवाओगे बताइए? दैट वाज माय क्वेश्चन। आपका बात सही, आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा यूजर को बताने के लिए कि आपको इनपुट में लिस्ट ऑफ सीक्वेंस डालना है, लेकिन कैसी सीक्वेंस? क्योंकि यूजर है, वो तो कुछ भी डाल से लेगा। आपने बोला कि नंबर डालना है, तो वो तो 1 2 3 4 5 6 7 सीक्वेंस में लिख दिया। तो उसका अगर मान लो, मेरे बात सुन लो पहले, अगर बच्चे ने, किसी ने बोला कि नंबर डालो, तो उसने डाल दिया 1 2 3 4 5, तो उसका मतलब होता है 12,345। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर से मैं बोल रहा हूँ, उसने नंबर डाल दिया 1 2। यस, वही तो मैं पूछ रहा हूँ बार बार आपको, और क्लियर कट लिखा हुआ है, कॉमा सेपरेट होना चाहिए। यस, आई एम टॉकिंग, मैं उसमें वही तो क्लियर बता रहा हूँ, तो नंबर शुड बी कॉमा सेपरेटेड। तो मतलब आप जब नंबर डालते हो, इट शुड बी कॉमा सेपरेटेड। तो आपको नंबर कैसे डालना है? 1, 2, 3, 4, ऐसे डालना है। तो यही तो मैं पूछ रहा था सब। किसी ने बोला कि आपको डालना है कॉमा से सेपरेटेड डालना है, बट फिर भी यू आर थिंकिंग ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट। आप स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में अभी भी सोच रहे थे, बट स्क्वायर ब्रैकेट वो प्रोग्राम के अंदर आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब बाहर कोई नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट आप लिख रहे हो, इट इज वन टाइप ऑफ कैरेक्टर, समझ लो, वो कैरेक्टर हो जाएगा वो एक। तो स्क्वायर ब्रैकेट हम बाहर नहीं कर सकते। अगर आपको करना है, यूज करना है, तो यू नीड टू यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। फिर यू नीड टू रिमूव दिस स्क्वायर ब्रैकेट फ्रॉम दी इनपुट एंड आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर लिस्ट एंड ब्ला ब्ला। आपको बहुत कुछ करके फिर आपको यू विल गेट दी करेक्ट लिस्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिंटैक्स, जो आपकी सिंटैक्स है। सो राइट नाउ वी आर राइटिंग आउटसाइड ए प्रोग्राम। जो आप मैं देखो, प्रोग्राम के जो 2 पार्ट है प्रोग्राम के, एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है और एक एडिटर होता है, समझ लो। आपको अभी तक हमने जो करवाया था,
तो जो आपके बोल सकते हो कि राइट हैंड साइड में जो होता है, वो जो ब्लैक कलर का जो उसमें पाइथन एडिटर जो है हमारा, मैं शेयर करता हूँ, तो आपको जस्ट आइडिया मिलेगा। आपको पता ही है, फिर भी आई विल शेयर अगेन। मतलब आई हैव टेक मच ऑफ टाइम आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट बिकॉज आई वांट दिस रिपीट अगेन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो पार्ट है, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड है, दिख रहा है दो पार्ट में प्रोग्राम। मतलब ये जो शेल है, जो पाइथन एडिटर बोल सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट बोल सकते हो, और ये साइड का है पाइथन एडिटर बोलते हैं हम बेसिकली। इसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम। तो एग्जीक्यूशन जब होगा प्रोग्राम, तो यहाँ से इनपुट मांगेगा हमारे पास। मतलब ये यूजर साइड है, ये कौन सी साइड है, ये यूजर साइड है, और ये कौन सी साइड है, डेवलपर साइड है। समझ लो, ये डेवलपर साइड है, ये यूजर साइड है। क्योंकि अब डेवलपर यूजर को बताएगा कि भाई ये चीज करो, तब यूजर इनपुट देगा, डेवलपर उस यूजर इनपुट के हिसाब से पूरा प्रोसेस करेगा, एंड डेवलपर आउटपुट देगा यूजर को। तो यूजर का काम क्या था, इनपुट देना और आउटपुट देखना। उसका क्या प्रोग्राम है उससे कोई मतलब नहीं है, समझ लो, उसने अंदर क्या प्रोग्राम बनाया है उससे कोई मतलब। तो अभी मैं यूजर हूं आपका, कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है, मैंने बताया आप डेवलपर हो, मैंने आपको बोला कि भाई मेरे को एक प्रोग्राम बना के दो, मेरे पास बहुत सारे नंबर होते हैं जो कॉमा सेपरेटेड नंबर्स है, मैं आपको दूंगा, बस आपको उसमें से मेरे को काउंट करके देना है कि इतने ऑड नंबर है, इतने इवन नंबर। आप समझे, अभी मैं यूजर हूं, आप डेवलपर है, मैंने आपको एक टास्क दिया कि आपको मैं एक लिस्ट दूंगा, उस लिस्ट में सब नंबर कॉमा सेपरेटेड है, और वो कॉमा सेपरेटेड नंबर जो है उसमें से कितने ऑड नंबर है, कितने इवन नंबर है, वो आपको काउंट करके मेरे को देना है। मतलब आउटपुट में मेरे को क्या मिलना चाहिए, खाली काउंट, द नंबर्स ऑफ ऑड इज दिस, द नंबर्स ऑफ इवन इज दिस। ठीक है, अभी समझे आप प्रोग्राम का स्टेटमेंट, अभी समझे। इनपुट में क्या होगा कि मैं डेवलपर हूं, तो मैं पहले लिख के दूंगा उसको कि एंटर ए सीरीज ऑफ नंबर्स विथ कॉमा सेपरेटेड, अथवा ऐसे लिखूंगा एंटर ए कॉमा सेपरेटेड नंबर सीरीज। सीरीज या नंबर से सीरीज की जरूरत नहीं, सीरीज मतलब वो सीक्वेंस में होता है। मैं ऐसे लिखूंगा एंटर ए कॉमा सेपरेटेड नंबर्स, इतना सेंटेंस लिखूंगा, तो वो यूजर समझ जाएगा कि व्हाट आई नीड टू गिव द इनपुट्स की कॉमा सेपरेटेड नंबर। तो वो क्या स्टार्ट करे, नंबर एंटर स्टार्ट करने का 3, 5, 6, 9, 10, 11, 3, 5, 2, कुछ भी नंबर डालेगा कॉमा करके, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये हुई उसकी सीक्वेंस डालने की प्रोसेस, ये इनपुट हुआ। अभी समझे इनपुट क्या होना चाहिए, कॉमा सेपरेटेड नंबर्स, बट इट इज इंटीजर नंबर्स। तो एक चीज क्लियर होना चाहिए, इट्स ए इंटीजर नंबर। तो इसमें आप स्टेटमेंट में लिखना होता, लिख सकते कि एंटर कॉमा सेपरेटेड इंटीजर नंबर्स। ठीक है, दूसरी बात, अभी ये इनपुट गया इसके अंदर, और आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, दो आउटपुट मिलना चाहिए। एक दो आउटपुट या सिंगल स्टेटमेंट में भी हो सकता है कि नंबर्स ऑफ ऑड इज और ऑड नंबर्स आर दिस मच, मतलब 2, एंड इवन नंबर्स आर 3, जो भी रिजल्ट आ रहा है 2 3 चेंज होगा हर एक बार, तो ऐसा आना चाहिए। तो अभी स्टेटमेंट क्लियर हुआ, कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है स्टेटमेंट को। तो दिस स्टेटमेंट व्हाट आई हैव रिटन, उसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट दोनों की बात हो रही थी। तो इनपुट आउटपुट की दोनों की जो बात हो रही थी, तो राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू काउंट, तो आपको बेसिक आउटपुट में टू करके बाद में जो लिख के आ रहा है ना, वो बेसिकली आउटपुट होता है जनरली। प्रोग्राम टू काउंट दी नंबर्स ऑफ ऑड एंड इवन्स। ठीक है, तो प्रोग्राम टू काउंट दी इवन एंड ऑड नंबर्स जो भी है आपके, वो काउंट करना है। मतलब आपको आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, काउंट मिलना चाहिए, नंबर्स नहीं मिलना चाहिए। मतलब आप 1 से 10 नंबर डाले हुए तो बोले कि 1 3 5 7, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ठीक है, आपको उसके खाली काउंट चाहिए कि 3 नंबर के है कि 4 नंबर है, कितने हैं ऑड नंबर। वो कहां से, मतलब फ्रॉम, फ्रॉम मतलब अगर आया, मतलब क्या है, अभी इनपुट की बात हो रही है। फ्रॉम ए सीरीज ऑफ कॉमा सेपरेटेड नंबर्स, वो ए जो है सीरीज ऑफ कॉमा सेपरेट, सीरीज मतलब इट में भी सीक्वेंस नहीं है कि 1 2 3 4, सीरीज मतलब नंबर्स की सीरीज है, बट कैसी सीरीज है, कॉमा सेपरेटेड सीरीज है, मतलब सीरीज आपकी कॉमा सेपरेटेड होनी चाहिए। तो आर यू गेटिंग दी स्टेटमेंट, अभी आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया।
इसमें भी कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अभी सबको क्लियर स्टेटमेंट? यस सर। जितने भी डाउट्स थे आई थिंक आई हैव Yes, सॉल्व sir. योर। अभी आप प्रोग्राम बनाएंगे इसका, ठीक है। आई एम गिविंग यू दी एक 40 हुई है, आई एम गोइंग टू गिव यू 10 मिनट 15 मिनट्स आपको मैं देता हूँ। 155 पे मैं जस्ट आपसे इनपुट लूंगा। फटाफट आपको फटाफट उसका प्रोग्राम बनाना है। कितना बनाते हो मैं देखता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट। हेलो सर। यस बोलो वर्ष। यस सर, हो गया। हो गया, ओके। सो विल वेट फॉर, आप सबके लिए आप वेट करिए, मैं सबके साथ आपको भी, ठीक है। टू बी रेडी विद दैट, आप जब भी मैं बोलूंगा आप खाली उसको प्रेजेंट करना, ठीक है।
ओके, किसी का हो चुका है क्या हर्ष के अलावा? Because we have less time, so 10 मिनट में आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टू फिनिश द डिस्कशन अबाउट दैट। एक्चुअली यही होता है कि अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा और आई विल ट्राई टू डू इन द क्लास, तो क्या होगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। ओके, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो बेटर इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं जब असाइनमेंट देता हूँ आपको, यू शुड डू इट योर सेल्फ। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत लगती है, देन यू कैन टॉक टू मी। आप यू कैन, जो आपका क्वेश्चन है वो यू कैन राइज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आप मेरे को बता सकते हो जब हमारे क्लास लैब हो तभी। तो क्या होगा, विल फोकस ऑन टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम ओनली। अगर आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म में, ये तो पहला प्रोग्राम था इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया। नेक्स्ट प्रोग्राम जो ऑनवर्ड्स है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दी होल स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट नहीं बताऊंगा मैं आपको, मतलब स्टेटमेंट बताऊंगा बट उसका मीनिंग आपको यू नीड टू इंटरप्रेट। ठीक है, तो वो आपको समझना आना चाहिए। एग्जाम में भी यही चीज होगी, आपको स्टेटमेंट को समझना आना चाहिए फर्स्ट थिंग। ओके, तो आई थिंक हर्ष हैज फिनिश्ड हिज वर्क, सो विल यू प्लीज प्रेजेंट हर्ष? ओके, बताइए, आप अपना प्रोग्राम शेयर करिए और बताइए कि कैसे आपने किया हुआ है। तो सर स्क्रीन दिख रही है सर? यस। मैंने एक एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज की है, जैसे आप देख रहे होंगे लाइन नंबर 4 पे। फिर मैंने लाइन नंबर 5 में एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोला। मैंने यूजर से पूछा है कि आपको कितने नंबर में चेक करना है, तो यूजर वो एंटर करेगा। और फिर मैंने फॉर लूप बनाया है। इज इट कॉमा सेपरेटेड और नॉट? Sir, it is sir line separated. He will enter one by one. Okay, you are entering one by one. So it will ask you multiple times. Yes, sir. No, sir. I just asked how many times he wants to enter. He will enter 5. So he will enter first 1. Then he will press enter. Then he will enter 2. Then enter 3. Then enter 4. Then enter 5. And after 5. Okay. So like that you have made. Actually, this was not our statement. This I'm जो मैंने statement बताया था, and you have used the procedure is somewhat different, because what we required the input is called comma separated inputs. So here you have inputs a number. Okay, your method, I am talking about this method, it is right, but what it is asked and what you have applied is a different thing. So this is the way you can do the program. This is the one way of doing the program, but the input the asked is some different way. Are you getting my point? So it is correct, you are not wrong. Yes sir. So okay, you can proceed. आप बताइए आगे। सर वो थोड़ा सा सर कॉमा वाले में कुछ एरर आ रही थी, तो मैंने प्रोग्राम चेंज कर दिया। ओके, वो लिस्ट ही पूरा का पूरा प्रिंट कर रहा था, वो लिस्ट को आगे प्रोग्राम के आगे नहीं जा रहा था, बस वही प्रॉब्लम आई। तो मैंने ये यूज कर दिया फॉर मेथड। ओके, बताइए आगे, बताइए 10 लाइन में क्या है, 10th लाइन में क्या है? ओके, तो ये यूजर इनपुट कर रहा है फॉर का इस्तेमाल करके अपेंड का इस्तेमाल करके ये 1 by 1 एक ऐड किए जा रहे हैं। जैसे हम जानते हैं अपेंड फंक्शन हम लोग को इस्तेमाल करता है बिना लिस्ट चेंज किए, उसी लिस्ट में नंबर वो ऐड किए जाता है। तो मैं एक लिस्ट प्रिंट करा लूंगा और बाद में उसमें फिर मैंने एक अलग लिस्ट इनिशियलाइज की है इवन और ऑड के लिए। इवन और ऑड के लिए अगर कोई इवन नंबर एक के लिए लिस्ट और एक ऑड नंबर के लिए। और मैंने जैसे सर ने बाद में बोला कि आपको काउंट भी करना है, तो मैंने काउंट को भी इनिशियलाइज कर दिया। काउंट ओ का मतलब है काउंट ऑड, 0 से मैंने इनिशियलाइज किया है क्योंकि कोई भी नंबर जो चालू होगा वो 0 से होगा। फिर काउंट इवन मैंने एक इनिशियलाइज किया है 0 से। फिर हमारा मेन प्रोग्राम जो बॉडी का आता है उसमें फॉर आई इन लिस्ट, मैंने जो लिस्ट आप यूजर ने जो एंटर की है उसमें वो पहले चेक करेगा कि अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है और अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो इवन डॉट अपेंड करेगा। मैं उसमें इवन वाले नंबर में एक लिस्ट एक नंबर ऐड भी कर देगा और काउंट
काउंट में एक काउंट बढ़ा भी देगा। अगर जैसे कुछ इवन आया, जैसे 2 आया, तो 2 को वो पहले चेक भी कर लेगा कि हाँ ये 2 इवन है, इवन को इवन वाली लिस्ट में डाल देगा और काउंट को 1+1 कर देगा। ओके, फिर अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो तो वे सेम प्रोसेस ऑड वाले के लिए करेगा। और मैं फिर प्रिंट कर दे रहा हूँ इवन ऑड नंबर्स का पूरा एक लिस्ट डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। बाद में कितने इवन और ऑड नंबर है मैं वो भी काउंट दिखा दे रहा हूँ। ओके, तो आप रन करके दिखाइए इसको। तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट 5 एंटर करता हूँ तो मेरा आउटपुट 5 बार आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर जो दिखा मैंने। ओके, वेरी गुड। तो अभी आपको समझ में आ गया कि व्हाट वाज आई वाज आस्किंग एंड व्हाट यू हैव डन। सो अभी डिफरेंस आपको समझ में आया? यस सर। कि मैं क्या चाहता था Yes, कि sir, yes. एंटर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। सो 1 जैसे आपने 1 2 3 4 5 डाला, तो व्हाट आई एम आस्किंग इज 1, 2, 3, 4, 5। अगर यूजर को 6 नंबर डालने थे, 6 करेगा। अगर 7 नंबर डालने थे, जो भी नंबर डालना है, मतलब जितने भी नंबर डालना है वो उसमें डालता जाएगा। So this was the my statement. So what I'm going to do, अभी मेरे पास we do not have that much of sufficient time, so I'm going to do that particular program. So I will left to you. आपको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. Next time, if you have any query regarding that, I will going to solve that particular problem. So I'm going to create a one quiz, or we can say assignment, like in your ungraded assignment. So there is no grade for that. But I am going to assess that particular assignment. तो उस असाइनमेंट के अंदर आपको क्या करना है कि आपका ये जो प्रोग्राम है उसका जो इनपुट एंड आउटपुट का जो स्क्रीनशॉट है, ठीक है, प्रोग्राम का जो स्क्रीनशॉट है, आप इनपुट जो मतलब प्रोग्राम बना रहे हो उसका एंड इनपुट एंड आउटपुट दोनों होके जो आउटपुट में आ रहा है वो दोनों का स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना है इन असाइनमेंट के अंदर। कब तक करना है? कल तक करना है, कल शाम तक आपको इसको करना है। सो यू हैव इनफ टाइम, फुल डे, आज का कल का 2 दिन है, आपको इस काम को करना है। दिस इज नो ग्रेड फॉर दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, बट इट विल बी कंसिडर फॉर योर फर्दर ग्रेडिंग। कोई ग्रेड्स नहीं है, बट इट विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस असाइनमेंट फॉर फाइंडिंग odd or even. Odd. So I'm putting to you right now. आपके असाइनमेंट में अभी आपको दिखाई देगा। So I'm not going writing any instruction for that. Just I will paste that particular statement. आपको अगर चाहिए तो मैं स्टेटमेंट में इंस्ट्रक्शन में पेस्ट कर देता हूँ स्टेटमेंट को। Clear? So it will be visible to you. And the date for this particular I am putting as tomorrow at means 1st August. तो मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। So this is I am right now I am assigning to you. Okay, अभी मैं assign कर रहा हूँ, it is visible to you. Finding the odd number even count. Find the odd even count, ठीक है। This I am assigning to you. तो आपको ये चीज करना है, ठीक है। आपको मिल गया होगा ऐसा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। ट्राई इट योरसेल्फ। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट सेशन। जब भी हमारा नेक्स्ट सैटरडे सेशन होगा यही टाइम पे, बिकॉज अगेन आई वाज इन दी ट्रेनिंग इन नेक्स्ट वीक के लिए भी मैं ट्रेनिंग में ही हूँ। तो आपका शेड्यूल्ड जो है इसका पर्टिकुलर लैब का ही रिशेड्यूल किया, बाकी सब लेक्चर्स एडजस्ट किया हुआ है particular faculties को, okay। So I think the lectures was on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday we have lecture. It is adjusted to HN Chaudhary sir, and the lecture on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday it is also adjusted to the HN Chaudhary sir, and lab I have rescheduled on Saturday. So next Saturday we'll meet again on same time, right? So that's all for today's session. If you have any question regarding that session, आप मेरे को बता सकते। Okay, then I'm going to end this session. Goodbye to all. Have a nice day. Thank you, sir. Bye bye.